جی حضرت صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کچھ پایا. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جن کی سب کام آپ کی ماشاءاللہ دعا سے ہوتے ہیں انشاءاللہ. اور کیا پایا؟ اپنے جی حضرت صاحب آپ نے نا پوڈ کاسٹ میں عمل ایک بتایا تھا اصحاب کہف کا نام کا اور گلاب کی 3 پتیوں کا عمل آپ نے فرمایا تھا. ذرا وضاحت بتا دیں, دنیا کو فائدہ ہو جائے گا. جی 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 جی. تو 3 گلاب کی پتیاں لینی ہے, اس میں 3 دن یعنی کہ 1 پتی لے کے آپ نے اس سے 40 دفعہ اصحاب کہف کے نام پڑھنے ہیں اور اسے دم کرنا ہے اور وہ کھا لینا ہے. اسی طرح 3 دن کرنا ہے تو آپ کا جو بھی مسئلہ آج کا پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی. تو میری نا صحت میں بڑا فرق پڑا تھا. 3 دن کیا تھا, پھر 3 دفعہ کیا, پھر ایسے 2-3 دفعہ میں نے کیا نا ماشاءاللہ. ہر پتی پہ اصحاب کہف کا نام 40 بار پڑھنا ہے, 41 بار. جی 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 40 بار آپ نے فرمایا تھا 40 دفعہ ہر پتی پہ 3 دن. اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا اگر آپ اس کو لگاتار کرنا چاہتے ہیں, پورا ویک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں. اس کو مطلب کہ 7 دن کر لیں یا ہفتے میں مہینے میں کچھ دن کر لیں, اس طرح فرمایا تھا آپ نے. جی 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 جی. اس کے علاوہ سورہ قریش سے بہت برکت ملی ماشاءاللہ. جو سفر کے مہینے میں 7 کی تھی, 40,000 ماشاءاللہ پڑھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی جی سورۃ قریش سے بہت برکت ملی, خیریں ملی. جی جی. اور سورہ کوثر جو ماشاءاللہ رمضان 2011 سے اسٹارٹ کی تھی رمضان کی, تو اس سے ماشاءاللہ تھیلی کبھی خالی نہیں ہوئی. تھیلی کبھی خالی نہیں ہوئی, جو سورۃ کوثر رمضان کا پیکج ہے. جی جی جی. اللہ پاک کی رحمت. سورۃ قریش سے یہ بھی ہوتا ہے کہ غیبی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے بہت زیادہ. سچ ہے, بالکل سچ ہے. اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ, ہمیشہ خیریں ہوں, برکتیں ہوں. آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ریاض سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے شیخ الوظائف, آپ کی بات سن رہی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا, استخارہ کرانا تھا اپنی میاں کے بارے میں. اچھا اچھا. ان کو آئے دن مطلب پریشان ہو رہتے ہیں. جی جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ کی بات. جی حکیم صاحب ان کو مطلب پریشانی ہی رہتی ہے. جی مطلب ایک پریشانی سے نکلتے ہیں, دوسری ان کے لیے پہلے تیار کھڑی ہوتی ہے. وہ پریشان ہونا ہو میں تو بہت ہوتی ہوں. ہاں ہاں ہاں. مطلب بڑی پریشانی ہوتی ہے. نمازیں نہیں پڑھتے حکیم صاحب, موبائل یوز کروا لیں. ہاں ہاں جی جی. اچھا انشاءاللہ کرم ہوگا. تو حکیم صاحب وہ شوہر کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کی بیوی کو تسبیح خانے سے نسبت اور روحانی دنیا سے نسبت ملی ہے. وہ شوہر بھی خوش قسمت ہے. حکیم صاحب بس کیا میں آپ کو بتاؤں, میں ہی وظائف کرتی ہوں یا پڑھتی ہوں. آج کل آپ کا یا بدیہ لجائے خیریہ بدیہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حکیم صاحب, اور میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. میں ان کے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں. مجھے میرا دل ہے ایک امام کعبہ بنے, ایک امام مدینہ بنے. اللہ اکبر. اللہ جذبے قبول فرمائے, جذبے قبول فرمائے. آمین. لیکن میں کہتا ہوں امام کعبہ بھی بنے, امام مدینہ بھی بنے, لیکن میری چاہت یہ ہے کہ پوری دنیا کے امام بنے. وجعلنا للمتقین اماما, میرے کملی والے نے یہ فرمایا. اور اس طرح امام بنے کہ دنیا کے سارے مذاہب, سارے لوگ, سب کو لے کر چلنا محبت پیار سے, اور سب کی سننا اور سب کی برداشت کرنا, اور سب مذاہب کے کو برداشت کر کے چلنا, یہ اصل ہے. اور انشاءاللہ آپ کا جذبہ قبول ہے, قبول ہے. کیا پایا آپ نے آپ کری سے؟ حکیم صاحب بس مجھے بہت سکون ملا ہے. میری بھی اپنی ذات جو ہے نا وہ بہت سکون دے رہتی ہے, مطمئن ہوں میں. باقی لیکن شوہر کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں. ان دونوں کے نام لکھیں. مطلب پریشان, شوہر کی وجہ سے پریشان نہیں ہے, کرم ہوگا آپ کا. یاد رکھیں, ایک بات بتا دوں, آپ کا پڑھا, آپ کا جذبہ, آپ کی دعائیں اثر لاتی ہیں. فرمایا دعاؤں کے رنگ نہیں ہوتے پر رنگ لاتی ہیں. اچھا حکیم صاحب مجھے بڑا شوق ہے, میرے پاس بڑی گاڑی ہو, بڑا گھر ہو. ہاں تو الحمدللہ ابھی بھی میرے پاس بہت بڑا گھر ہے ریاض میں, لیکن اپنا تو نہیں ہے نا. رحمت ہے آپ کے پاس, کرم ہے, بہت کرم ہے. فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں. آپ نے کوئی خاص ٹوٹکا بتائیں, کوئی وظیفہ ایسا جو خاص پایا ہو اور کبھی اس کو خطا نہ گیا ہو, دنیا آپ کی آواز سن. حکیم صاحب ابھی میں یہ بھی پڑھ رہی ہوں حکیم صاحب, 2 نفل پڑھ کے 3 بار یاسین سورت یاسین. میرے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا, جی جی, تو 2 ماہ بعد اس کا ایڈمیشن ہو گیا اسکول میں. جی جی. اور یہ میں نے اس سے پایا یاسین, یہ بھی میں کرتی رہتی ہوں. یہ بھی میں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا ہوا ہے. ماشاءاللہ, یہ بھی میں کرتی رہتی ہوں. ماشاءاللہ. اور حکیم صاحب میں خود ہائپوتھائرائڈ پیشنٹ ہوں. میرے جسم میں بہت دردیں ہوتی ہیں, مطلب ہر وقت تھکاوٹ. تسبیحات فاطمہ ہے ہی آپ کے لیے, تسبیحات فاطمہ تو ہے ہی آپ کے لیے, اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ کامیاب, اللہ کی رحمت سے. دعائیں جی, سب وظائف کی اجازت ہے آپ کو, تمام وظائف کی اجازت ہے. فقیر کی دعائیں ہیں, رحمت میرے بچوں کو اللہ نیک بنائے, الہی میرے شوہر کو راہ راست پہ لائے, نمازیں پڑھتا دیکھنا چاہتی ہوں. رحمت رحمت رحمت. شکریہ حکیم صاحب, رحمت, شکریہ بہت, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اونچا بولیے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی فرمائیے شیخ الوظائف, آپ کی بات سن رہے ہیں. ہاں کچھ مسئلے مسائل ہیں گھر کے, بس گھر کی تو نہیں ہے الحمدللہ, باقی یہ کہ کچھ روزی رزق میں جو ہے نا مطلب کام ہوتے ہیں وہ بھی نہیں چل رہے, بالکل رکے ہوئے ہیں کام. جیسے ہم گاڑیوں کا کام کرتے ہیں, ابھی گاڑیاں جو ریٹرن ہوتی ہیں وہ
मेरे बैठ की हुई है वो नहीं निकल रही, मतलब बिल्कुल भी कहते हैं ना कि, और करने वाले भी बीच में जैसे अपने वाले मतलब जैसे कुछ जेलिस होती है, कोई जेलसी इस टाइप का कुछ मामला चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। जी, कोई वजीफा वगैरह या कोई ऐसा मतलब वो बताएं कि ताकि आसानी हो। रहमत हो। अच्छा ये बताएं आपने अपकरी से क्या पाया? मैंने पहले एक आपकी वीडियो देखी थी जी, तो वो मेरी दोस्त, हाँ तो वो वीडियो से मैंने एक वजीफा किया था, अब मुझे याद नहीं है, वो 1 साल हो गया तकरीबन। जी। तो मुझे मतलब उससे फायदा हुआ था। क्या तो फायदा उसके बाद हुआ? जो है अभी जो मामला जो है अभी दोस्त मतलब यही कुछ घरेलू कुछ मामला थे आप इसमें, अभी जो मेरे हस्बैंड उनकी भाई आती थी उनकी भी मामला अच्छी नहीं है, यही पे रहते हैं वो भी साउथ अफ्रीका में, तो वो मतलब वो नहीं तो असलाम नहीं उनके आप इसमें। आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पिंडी, जेहलम, इस्लामाबाद इस पट्टी कहाँ के हैं? हम अटक से बिलोंग करते हैं। ये पट्टी है, ठीक है। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। आपके लिए तमाम वजीफों की एक तो इजाज़त दे रहा हूँ, और दूसरा जो 15 शाबान को नफिल आपको दिए थे उन नफिल को तवज्जो से करें। बहुत कन फ़यकून नफिल हैं और उससे हाजतें मुरादें पूरी होती हैं और मुश्किलें हल होती हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही। तो ये जो है मतलब साथ में वो जो है हमारे जो मेरा जो देवर है वो जो है ना हमारे साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, स्पेशली मतलब मेरे साथ जो है तुम लिफाफे बनाओ, कोई ना कोई बात बना के झगड़ा। जी जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हेलो, सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ, वो मतलब झगड़े जो है घर में चलते रहते हैं, हाँ तो वो बीच में पॉइंट करते हैं हमें जो है ना, वो मुझे पॉइंट करता है या फिर मेरे घर वाले को। जो वज़ाइफ आपको दिए हैं इंशाल्लाह इन सारे मसाइल का हल है। पहले भी आपने तस्बीह खाने के वज़ाइफ से बहुत पाया है, इंशाल्लाह और पाएंगे। करीम करम फरमाएगा इंशाल्लाह, रहमत होगी, रहमत होगी। तो ये अभी जो रुका हुआ काम है इसके लिए कोई वजीफा बताएं जो बता रहे हैं कि रोजी रिज़्क़ के लिए। या बदिया लाजाए बिलखैर या बदियो 12 तस्बीहां अवल आखिर 12 दफ़ा दरूद शरीफ बहुत गिड़गिड़ा के पढ़ें, बहुत तवज्जो से पढ़ें, इंशाल्लाह नफ़ा और खैर मिलेगी। दुआएं आपके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ। फरमाइए शेख वज़ाइफ, आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत साहब, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। तो आज से 3 साल पहले उसकी ऑनलाइन ही किसी लड़की से बातचीत हुई, तो हमने शादी तय कर दी। वो फ्रॉड ही था वो। फिर 15-20 दिन बाद शादी से वो जेवर वेवर लेकर सब भाग गए। तो अब ये है कि अब जहाँ भी हम रिश्ता करना चाहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, वो हो नहीं पाता रिश्ता जी। तो मुझे मालूम करना था कि क्या कोई मसला है उसके साथ, क्या है। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? जी, और मुझे अपनी भांजी के बारे में भी बात करनी है जी। उसकी भी डिवोर्स हुई है और वो जो है अब उसके 3 बच्चे हैं और अब कोई आदमी उसके पीछे लग गया जो कि सिर्फ डॉक्टर है वो यहाँ पर, और वो सिर्फ पैसे खाई जा रहा है और बहुत ज्यादा तंग करता है मेरी बहन को, उनकी पूरी फैमिली को। अच्छा, इंशाल्लाह करम होगा। ऐसा करें आप सब घर वाले अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर इसको बहुत खुला पढ़ें, बहुत खुला पढ़ें, और हर नमाज के बाद एक तस्बीह अल्लाहुम्मा काफ हा या आइन सात अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ बहुत गिड़गिड़ा के पढ़ें। ये 2 अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और इससे पहले जितने अमल आप कर रहे हैं उनकी भी आपको इजाज़त है, उससे भी आपने नफ़ा और खैर पाई है, तो इंशाल्लाह इसमें भी आपको खैर और नफ़ा मिलेगा इंशाल्लाह। हज़रत साहब, क्या कोई मसला है क्या? मतलब क्यों नहीं रिश्ता हो पा रहा? आपकी शादी में क्यों रुकावट है इस तरह? रुकावटें तो ख़त्म हो रही हैं। जो आपने वजीफ़े किए हैं, तस्बीहां की हैं, उससे तो मुझे 100% मेरे इस्तिखारे में आ रहा है कि रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। क्योंकि आपका वो ला इलाहा वाला भी पढ़ रही हूँ मैं मुस्तकिल, क्योंकि आप अकेली पढ़ रही हैं, आपका साथ कोई नहीं दे रहा, आप हिम्मत वाली हैं, आप कर रही हैं। हज़रत साहब, मैं आपको बताऊं, मेरा ये बेटा 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, रोजा कभी नहीं छोड़ता था, मगर ये जब से शादी हुई है इसने नमाज से बिल्कुल दूर और ये रोजा वगैरह से दूर हो गया। पता नहीं, मेरी कुछ समझ नहीं आता कि मसला क्या है। रहमत होगी। आपको जो कुछ दिया है आप उस पर तवज्जो करें इंशाल्लाह। पहले भी आप कामयाब हुए हैं रूहानी दुनिया में, अब भी आप कामयाब हैं। मैं बहुत फायदा उठाया आपके सारे वजीफे से। और मेरी बेटी है, उसका भी है कि एक बेटा है माशाल्लाह, अब मजीद वो चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ बता दे पढ़ने के लिए। यही वजीफा, यही तस्बीह अमल आप भी तवज्जो से, आपका सारा घर तवज्जो से करें, इसी को तवज्जो यकीन से करेंगे इंशाल्लाह। दुआएं अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप ऊंचा बोलिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए शेख वज़ाइफ, आपकी बात सुन रहे हैं। मेरा मसला है कि मेरे शौहर ने अपने बेटे और आप सामने आप ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही।
एक मिनट मैं वॉल्यूम ऊंचा कर, अब सही है, अब सही है, अब ठीक है कैमरे के सामने। बेटा, अब ठीक है जी हाँ, फरमाइए फरमाइए। जी। तो मेरे शौहर नहीं है, मैं अपनी आप बेटी और उस- बहू के साथ रहती हूँ। तो मैं जो हूँ अब किसी और शहर में थी, हम रह रखा के, जब बेटी की शादी हुई तो दूसरे शहर आ गई, क्योंकि बहू के जो पेरेंट्स थे ना वो यहाँ हैं दूसरे शहर में। तो बेटे ने वजू की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह भी घर खरीदा है ना नया, लेकिन अभी 2 साल हुए घर में, तो अचानक बेटा जो कहता है कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, वापस दूसरे शहर जाना है जहाँ से हम लोग आए थे मामी का। जी जी। तो वो घर में वो कह रहा है मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन बहू जो है वो वापस जाना नहीं चाहती, क्योंकि उनके घर वाले यहाँ पे जा या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे इस्तिखारे में आ रहा आपका बेटा बहू वरना घर के जितने अफराद, आप ये वजीफ़ा अगर कर लें या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपको इसका बहुत नतीजा फ़ायदा मिला है और मिलेगा। और 40 बार सूरत वज़्ज़ुहा सुबह शाम पढ़ें बिस्मिल्लाह अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब। जी वालेकुम आप अस्सलाम। जी बोलिए। जी हज़रत साहब, मेरे 2 सवाल हैं। जी। एक तो मेरे भाई का मसला है कि उसका ना कारोबार कभी है कभी नहीं है ना। जी उसने अपना घर भी बनाना है, अभी कमा रहा है ना, उसकी शादी नहीं हुई जी। और पाकिस्तान में ही काम करता है। तो बस जो भी वो कमाता है ना, कभी अम्मी की बीमारी पे लग जाता है या कभी किसी और चीज पे ना, मतलब रिस्क की तरफ से ना उसको परेशानी है ना। जी जी। तो उसके लिए प्लीज मुझे कुछ वज़ाइफ बता दें और उसके लिए दुआ भी कर दें। मुजीब रहमान नाम है उसका। जी जी। और हज़रत साहब, आपने ना, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी, मेरी आपसे मुलाकात हुई थी 12 साल पहले। तो हज़रत साहब, आपने ना मुझे काले कपड़े वाला अमल बताया था, जी। जिससे बैठ के ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना था। जी। लेकिन हज़रत साहब, मुझे ये भूल गया है कि वो कितने टाइम पढ़ना था और कितने दिन बाद उस कपड़े को जलाना था ना। 40 दिन, सुबह शाम 313 बार। 40 दिन। जी। अच्छा, उस पर बैठ के पढ़ना है। बैठ के पढ़ना है, तवज्जो से अपने मसाइल मुश्किलात परेशानियों का तस्वर करके 40 दिन के बाद फिर उस कपड़े को जला के उसकी राख बहा देनी है। जी हज़रत साहब, ये मैंने अपने हस्बैंड की जॉब के लिए भी आपसे पूछना था ना कि अल्लाह ताला उनको कोई अच्छी नौकरी दे देना। आपने क्या पाया आप करी से? है कुछ तो ले लो। हज़रत साहब, जी हज़रत साहब, 12 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी ना, आपने ये वजीफा दिया था, या यू या कय्यूम या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिक अस्तागीर। जी जी। तो जी तो हज़रत साहब, मेरे हस्बैंड एक मामूली सी जॉब करते थे पाकिस्तान में। तो जी। अल्लाह ताला ने ऐसा वसीया बनाया कि वो यहाँ आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, बड़ा फजल किया है ना, बहुत कुछ पाया आप करी से ना। क्या पाया? आपकी दुआ से अल्लाह ताला आपके हज़रत साहब, आप ये कहने कि हम जीरो पे थे ना, बिल्कुल रिस्क जी। की बहुत रिस्क की तरफ से बहुत तंगी थी, कुछ भी नहीं था। बस ये वजीफा पड़ा, उसके बाद उनके वीजे का मसला हल हो गया, फिर उनको यहाँ पे इतनी अच्छी जॉब मिल गई, फिर मैं भी यहाँ आ गई। मेरे पास औलाद नहीं थी, आपने यही वजीफा ही बताया था कि आप पढ़ती रहे ना। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी दी, फिर बेटा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बस हज़रत जी आपके जो भी आपने फरमाया था ना, उस सब आपने कहा था कि बस कुछ दिन है मुशक्कत के, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना फजल करेगा ना। जी। तो ऐसा ही हुआ जी। तो हज़रत जी, बस आपने अब दुआ करनी है तो मेरे हस्बैंड की कहीं अच्छी जॉब हो जाए, इंशाल्लाह उसके लिए मैं यही वजीफा पढ़ रही हूँ आपकी इजाजत से ना। और हज़रत जी, आपने मेरे भाई के लिए खुसूसी मुझे बताएं, कोई वो खुद पढ़ेगा, वो आपका प्रोग्राम देखता भी है। जो आप वज़ाइफ कर रहे हैं उन सब वज़ाइफ की आपके भाई को जी इजाज़त है, आप भी जी। करें वो भी करें, इंशाल्लाह रहमत और बरकत होगी। जी जी। हज़रत जी, आपने उसके लिए खुसूसी दुआ करनी है, अल्लाह ताला उसके लिए बहुत आसानियाँ करे। वो मेरी अम्मी की बहुत खिदमत करता है, बहुत खिदमत करता है ना। रहमत है, रहमत है, रहमत है। हज़रत करम जी, है। आपकी दुआओं में बहुत बरकत है, मेरे लिए खुसूसी दुआ आपने करनी है ना। करीम करम फरमाए, करीम करम फरमाए, रहमत हो। जज़ाकल्लाह हज़रत जी, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।